Hello guys, welcome to today's lecture. Today is going to be on simple interest and compound interest. A very great topic, one topic that is very much feared. The good thing about this topic is there are quite a few questions from this. समझो आराम से इससे तुम्हारे 4 से 5 मार्क्स तो सीट में से आराम से निकल जाएंगे. आराम से I'm saying there can be more. The bad part about it is the formulas are really scary. Like, चलो simple interest का formula is pretty easy. Simple interest is PNR upon 100. That's one formula that you have always solved since childhood. That's pretty easy. But the one formula which everyone is scared of using is the compound interest formula. The formula being, and first of all, you don't even get the compound interest. You straight away get an amount. So the amount is P into 1 plus R upon 100, the whole raised to N. N being the number of periods. समझो अगर क्वार्टरली है तो वो 4 होगा, अगर एनुअली है तो 1 होगा. Like for every number of year it will be 1. If it's half yearly तो it will be 2 for every year. So this makes things difficult because वो power से खेलना पड़ता है. But the one thing that you realize today in the whole session, I'm not gonna use the formula even once. I'll show you each and every sum how is it to be done traditionally and the way that you have to do it now that you are my students. Okay, so do you want to start the lecture, guys? Yep, sure. I'm going to keep the chat open so that everyone can see their doubts. Like, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो सबको दिखे. Please ask your doubts. It's absolutely fine. आज का लेक्चर थोड़ा टेढ़ा होने वाला है, but make sure that you pay a lot of attention. It's going to be very helpful. Okay. Now guys, tell me one thing. Normally समझो अगर मुझे दिया है कि what is compound interest? Tell me first of all. Simple interest तो सबको पता है कि ये इतना पैसा है, इतना पैसा मैं रखूंगा. समझो अगर simple interest पे मैं कहीं पे रखता हूँ तो I will get, समझो 10% इंटरेस्ट है तो every year मेरा 10% बढ़ता रहेगा equally. But now what is compound interest? Compound interest, it makes things a little different. Yes, exactly. Interest पे interest is how we call it. So in compound interest समझो अगर मेरे पास इतना है, in the first year I will get this much interest. मतलब मेरा पैसा इतना हो गया. सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, एवरी ईयर मेरा इतना 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 पैसा ही बढ़ेगा, जो मेरा शेडेड एरिया है ना उतना ही मेरा बढ़ेगा. इट विल कीप एडिंग द सेम वे. बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट इज द अदर वे अराउंड. इसमें क्या होता है कि एक बार अगर मेरा ये हो गया ना तो ये नाउ दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ माय अमाउंट. मतलब मेरा जो बेस वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा एवरी ईयर. तो आफ्टर 1 year इट विल बी लाइक दिस. इन द सेकेंड ईयर ये मेरा अमाउंट हो गया बड़ा वाला. इन द थर्ड ईयर ये पूरा मेरा अमाउंट हो गया, मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा. बाद में फोर्थ ईयर में इतना बड़ा अमाउंट हो गया. सो माई अमाउंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग जिसपे मुझे इंटरेस्ट मिलता है. दिस इज व्हाट जनरली बैंक्स यूज. सिंपल इंटरेस्ट जनरली किधर भी लाइफ में यूज होगा नहीं. कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हाट यू विल यूज ईच एंड एवरी टाइम. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस. एंड व्हाट डज कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जैक्टली मीन. समझो अगर मुझे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है तो पहले अगर समझो मेरे पास 100 रुपए थे, चलो 1000 रुपीज, तो आफ्टर 1 year मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया 1000. मेरा ओवरऑल अमाउंट विल बी 1000 प्लस 100. सिंपल इंटरेस्ट में दिस विल कंटिन्यू द सेम वे. बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल बी ये पहले साल का, सेकेंड साल का इज 1000 प्लस 100. जो पहले था वो तो है, बट ये 100 पे भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 10%. सो दैट इज 10. थर्ड ईयर 1000 प्लस 100 प्लस ये 100 पे मुझे 10 मिला प्लस ये 10 पे भी मुझे 1 मिला बिकॉज 10%. सो दैट मीन्स माई ओवरऑल इट कम्स अप टू, ये मेरा 1000 तो मेरा जितना पैसा था उतना था ही, ऊपर से मुझे इतना पैसा मिला. दिस इज द इंटरेस्ट इनकम. दिस हैजंट चेंज्ड. नाउ अ गुड वे टू सॉल्व दिस दैट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल जब तुम्हें इफेक्टिव रेट ढूंढना होता है, first of all guys tell me if in compound interest my amount is 1000, what will be the multiplying factor if I have a rate of interest that is 10%? Tell me. अगर 10% है तो फिर नेक्स्ट ईयर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा टू गेट माय फाइनल वैल्यू?
Exactly, a 1.1. 1.1 cube, it is 100 plus 10, that is the rate, upon 100. So that is 110 by 100, and which is equal to 1.1. So if I multiply this by 1.1, I will get my value into 1.1. अगर मुझे सेकेंड ईयर के लिए वापस चाहिए, I will multiply this whole thing again by 1.1. बाद में थर्ड ईयर के लिए चाहिए, मैं वापस इसको पूरे को 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा. So guys, are you understanding something? How is it going? I am continuously multiplying this by 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10. इसका मतलब क्या हो जाएगा? 11 क्यूब, सॉरी 11 क्यूब बाय 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं into 1000. So my answer will be 11 cube. That is 1331. The same answer that we got some time ago, वो calculate करके वो तरीके से. But now, what if I want to do this even quicker? समझो कि मुझे 4 साल के लिए ढूंढना, तो जो 11 का फोर्थ पावर ढूंढना पड़ेगा. So let's start with 2 years. समझो if I have a value like 25%, तो मुझे 2 बार 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. What if I want to find it in one step? मुझे कैसे 11 में तो मुझे पता है कि चलो मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 1.1 एवरी ईयर का. तो अगर मैं 3 साल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी इनटू 1.331 बिकॉज 11 का क्यूब इज 1331 एंड 3 बार पॉइंट्स डाल दिया. इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दिस कि मैं क्या कर रहा हूं? गिव मी यस और नो. ओके, सो हाउ डू आई गेट दिस 1.331 और हाउ डू आई गेट अ स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाइंग फैक्टर? जो भी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है मुझे उसमें स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए. तो फॉर दैट देयर इज दिस मेथड. समझो अगर मुझे 20% दिया है ना, सो कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए. तो 20 प्लस 20 प्लस 20 स्क्वायर बाय 100 कितना हो गया? ये 40 एंड 4 बाय 100 तो 44. सो बेसिकली क्या हुआ? इसका मतलब दैट मुझे 2 साल में ओवरऑल मुझे 1 साल का 20% मिलेगा एंड दूसरे साल का ओवरऑल वैल्यू पे वापस 20% मिलेगा. यस वैष्णवी, आई विल. सो आई विल गेट पहले ईयर का आई विल गेट 20% ऑन माई प्रिंसिपल अमाउंट एंड सेकेंड ईयर में ऑन दिस अमाउंट आई विल गेट अगेन 20%. सो ये जो है ना, इस पूरे को बस एक में मैंने मिला दिया ये वाली फॉर्मूला से, ये वाली मेथड से. 20 प्लस 20 प्लस 20 स्क्वायर बाय 100. तो मुझे आ गया 44. नाउ इफ आई वांट टू डू इट फॉर अनदर थर्ड ईयर, इस मेथड का बस एक ही ड्रॉबैक है कि अगर तुम्हें एट ए टाइम तुम बस 2 साल का ले सकते हो. तो अगर मुझे तीसरा साल चाहिए तो आई विल टेक 44 प्लस 20 प्लस 20 into 44 by 100. So that is 880, 8.8. So that is 64 plus 8.8, 72.8. Guys, ये क्या है? Somebody please explain me what is 72.8. Somebody please tell me what is 72.8. Exactly, it's my cumulative interest. इसका मतलब मुझे ओवरऑल 3 साल में 72.8 पैसा मेरा इंक्रीज हो गया. माई मनी इंक्रीज बाई 72.8% ओवरऑल. तो अब मुझे सीधा 72.8 से मल्टीप्लाई करना है मेरे प्रिंसिपल अमाउंट को. That's it, and I will get my answer. That is one method of doing this, and there is second method of finding compound interest. But ये आगे जाके आएगा, वो हम आगे करते हैं. Okay? Did everyone understand this? Okay, Vaishnavi. So Vaishnavi, my method basically is a multiplying factor is, समझो अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 है, मैं ओवरऑल मेरे प्रिंसिपल को फाइनली समझो अगर मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है एवरी ईयर, सो माय अमाउंट विल बिकम 1.1. सेकेंड ईयर के लिए वापस आई विल मल्टीप्लाई बाय 1.1.
थर्ड ईयर के लिए अगेन आई मल्टीप्लाई बाय 1.1 एंड मुझे थर्ड ईयर के एंड में कितना पैसा मिलेगा. सो इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई घड़ी 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 ना, उससे अच्छा माई मेथड वर्क्स इन दिस वे. आई कैन गेट ओवरऑल, ये जो है ना, ये ओवरऑल वैल्यू, मुझे इसका वन क्यूमुलेटिव वैल्यू मिल जाता है कि मैं मेरे प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मेरा फाइनल पैसा मिल जाएगा. व्हाट विल बी माय फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ x years. दैट इज व्हाट दिस फॉर्मूला इज. सो दैट इज, समझो अगर मुझे 10% दिया है, देन आई विल डू पहले 2 साल के लिए 10 + 10 + 10 square by 100. So that is 21. And then third year के लिए I will do 21 + 10 + 21 into 10 by 100. That is how much? 31 plus 2.1. That is how much? 33.1. इसका मतलब मेरा ओवरऑल, समझो अगर मेरा x था ना, समझो अगर मेरा 100x था, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, that has increased in 3 years by 33.1%. My overall increase is this much, 3 साल का. Instead of calculating 10% every time, this is my overall percentage increase. अब समझा वैष्णवी? Great. So guys, now let's take this ahead and go on to a few sums. चल, ये सब मेथड ध्यान रखना, आगे वाले सम्स में आएंगे. आज के ऑलमोस्ट हर सम में अलग अलग मेथड है. The amount at the end of 4 and 12 years respectively at simple interest is this much and this much. What was the amount at the end of 7 years? Okay guys, tell me, simple interest में every year मेरा amount एक सेम वैल्यू से बढ़ता है या फिर वैल्यू चेंज होता है every year? एग्जैक्टली सेम वैल्यू. अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल में मुझे 100 रुपए मिले ना, तो मुझे एवरी ईयर 25th ईयर में भी मुझे 100 रुपए ही मिलेंगे. इट वोंट चेंज. सो दैट मीन्स अगर मैं ये जो वैल्यू दिया है 81,000, 12 साल के बाद मेरा पैसा 81,000 हो गया एंड 4 साल में मेरा पैसा था 57,000. अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं ना, तो मुझे जितने 8 साल बच गए ना, 8 साल का इंटरेस्ट मिलेगा. समझ रहे हो? So if I subtract 81,000 minus 57,000, that is 24,000. That is my interest for 8 years. 8 years का इंटरेस्ट है. इसका मतलब मुझे पर ईयर इंटरेस्ट कितना मिलता है? एवरी ईयर मुझे 3,000 का इंटरेस्ट मिलता है, राइट? समझा सबको गाइस? मुझे 3 साल का इंटरेस्ट मिलता है एवरी ईयर. तो मुझे ढूंढना है व्हाट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 years. 4 साल के बाद इतने पैसे हुए ना, मैं बस 3 साल का इंटरेस्ट ऐड कर दूं, 69,000. दैट इज माय आंसर. यू आर राइट. दैट इज द आंसर. गाइस रिमेंबर, ये पूरे चैप्टर में फॉर्मूलाज यूज जरा भी मत करना, स्पेशली नॉट द कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. दैट इज गोइंग टू टोटली स्क्रू अप योर टाइम. बहुत टाइम लग जाएगा. ओके. A sum amounts to 20,000 and 25,000 at the end of 5 years and 10 years respectively. इसका मतलब क्या? मुझे 5 साल में 5,000 इंटरेस्ट मिला when it is compounded annually. हेमंत, मैंने सिर्फ ऐड कर दिया. एक मिनट, पहले वाले सब में 57,000 तो 4 साल के एंड में था ना. मुझे 4 साल के एंड में 57,000 था. मुझे 7 साल के एंड में चाहिए कितना पैसा मिलेगा. तो 7 साल मतलब 3 साल एक्स्ट्रा. तो मैंने 3 साल का 3,000 के हिसाब से लगा दिया. सॉरी, 66,000. माय बैड. द वैल्यू इज 66,000. हाँ, माय बैड. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट हेमंत. चलो. A sum amounts to this much and this much at the end of 5 years and 10 years respectively when compounded annually. What is the principal amount? Now guys tell me, मुझे ये दिया है 5,000 से मेरा पैसा बढ़ता है 5 साल में. ओके.
मुझे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता. नाउ कंपाउंडिंग में यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग. कंपाउंडिंग में द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स रिमेन द सेम. मतलब समझो अगर मुझे दिया है कि मेरे पास x रुपए थे एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरे 4 साल के बाद पैसे हो गए 2x. तो इसका मतलब एवरी 4 इयर्स मेरा पैसा डबल होता रहेगा, जिसका मतलब 2x था ना, तो अब इसका डबल होकर 4x हो गया 4 साल के बाद. आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स. 4 साल से कितना हो जाएगा मेरा? 4 साल के बाद वापस इधर कितना पैसा हो जाएगा मेरा? टेल मी समबडी. 8x. सुदीप 16x नहीं, 16x यहां पे आएगा, यहां पे 16x हो जाएगा. सो एवरी 4 इयर्स माई मनी गेट्स डबल्ड, जिसका मतलब कंपाउंडिंग में एवरी इक्वल इंटरवल पे मेरा अमाउंट का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर सेम रहता है. ये इंटू 2 हो, सॉरी, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड ये भी इंटू 2 हो जाएगा. एवरी सेम पीरियड माई अमाउंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाई द सेम फैक्टर. एक मिनट है गाइस, सिंपल चार्जर लगा. सो गाइस, मतलब समझो अगर मुझे ये चौथे साल का दिया, मुझे पता है कि मेरा 12 साल के बाद इंटरेस्ट मेरा है 8x एंड 16 साल के बाद मेरा इंटरेस्ट है 16x. तो समझो अगर मुझे 8 साल पे इंटरेस्ट ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा? टेल मी व्हाट विल आई डू? अगर मल्टीप्लाई सेम फैक्टर से होता है तो वो डिवाइड भी सेम फैक्टर से होगा. एग्जैक्टली अगर यहां से यहां हाफ हो गया तो यहां भी हाफ हो जाएगा. इट हैज टू बी 4x. मतलब ये 8 साल में, ये 16 साल में, तो ये मेरा 4 साल में कितना हो जाएगा? 2x. सो दिस इज हाउ इट गोस. सो लेट्स अप्लाई द सेम लॉजिक हियर. ये वाले सन में लगाता है. ये मेरा पैसा कितने से बढ़ गया? इट बिकेम 1.25 टाइम्स ना. पहले 20,000 था एंड अब 25,000 हो गया. मतलब कितना पैसा बढ़ गया? इट बिकेम 1.25 टाइम्स 5 साल में. तो एट 0 इट वाज समथिंग, एट 5 इयर्स इट बिकेम समथिंग, एट 10 इयर्स इट गॉट मल्टीप्लाइड बाय 1.25. तो अगर मुझे 5 साल से पीछे जाना है तो मैं क्या करूंगा? आई विल डिवाइड इट बाय 1.25, राइट? समझा सबको ये डिवीजन क्यों होगा? So simply what I have to do is divide 20,000 by 1.25 into 100 by 125. 4, 5, 4,000, 16,000. 16,000 is my final answer. आकाश, I think I explained it very simply. एक बार बस रिपीट कर लेना. अगर ना समझे then you can ask me a doubt anytime on the group, okay? प्राइवेट में मुझे पूछ लेना. Explanation was pretty simple. एक बार वापस देख लेना. Cool. Is that fine? Yes, Vaishnavi, this is very easy. Trust me, आज का पूरा चैप्टर वैसे होने वाला है. That very difficult sums we are gonna solve like this. An amount of 9,000 was invested at 20 PCPA. PCPA देख के डर मत जाओ. इट इज परसेंट पर एनम, मतलब 20% पर ईयर. पर एनम का मतलब पर ईयर. इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली. व्हाट इज द वैल्यू एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स? गाइस ऑलवेज रिमेंबर, सेमी एनुअली दिया है ना, तो हम लोग नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करेंगे. पर व्हाट वी विल डू इज, मैंने, ओके गाइस टेल मी व्हाट डिड आई टेल इन द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट? अमाउंट इक्वल्स टू P into 1 plus R upon 100 raised to N. What is N?
Somebody tell me what is n. I said particularly what is n. मतलब नहीं, n को क्या बोलते हैं? Like r is the rate, p is the principal, a is the amount. What is n? No, that is the one mistake that most people make. It is not number of years, it is number of periods. इसका मतलब अगर सेमी एनुअली है ना तो वो एक साल में 2 बार होगा, अगर क्वार्टरली है तो वो साल में 4 बार होगा. मतलब वो एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट खाएगा? हाउ मेनी टाइम्स विल इट गिव मी इंटरेस्ट एवरी ईयर? समझा? सो n इज द नंबर ऑफ पीरियड्स. सो नाउ हाउ वी कैन डू दिस सिंपली इज, ऐसे समझो कि मुझे एवरी 6 मंथ्स इंटरेस्ट, मतलब ऑब्वियसली 6 मंथ से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये दिमाग में बिठा के चलो कि इट इज एज गुड एज मैं पैसा 3 साल के लिए रख रहा हूं 10% पर एनम के हिसाब से. समझ रहे हो? इंस्टेड ऑफ 6 महीने के 3 मैं 10% पे 3 साल पैसा रख दूंगा. डिड यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया गाइस? एनीवे आई एम गेटिंग इंटरेस्ट ऐसा आधा साल का ही. तो अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दूं ना, आई डिवाइड दिस बाई 2, मतलब 20 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे वैल्यू आ जाएगा 10. इसका मतलब मुझे एवरी 6 मंथ्स 10% इंटरेस्ट मिल रहा है. सो रिमेंबर दिस. नाउ लेट्स सॉल्व इट सिंपली. हाउ वी विल डू इट? मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है 3 बार, एंड 10% का मैंने तो तुम लोग को बता दिया था कि 10% का वैल्यू कितना आएगा? 1.331. No, 9k does not become 4.5. The 9k remains 9k. So all I have to do is 9,000 into 1.331. That's it. That is my answer. What is the value at the end of 18 months? 9,000 into 1.331. That's it. समझ रहे सबको? हाँ वेद, हाँ. You can also take this as 9 into 1331. I hope everybody understood this. Guys, does this make it much simpler than solving with a formula? Are you understanding what I'm doing here? I'm glad. राज, आंसर ढूंढने से फर्क नहीं पड़ता, अभी आंसर नहीं ढूंढना है. एंड योर आंसर इज एनीवे गलत. 21 रिपीट करो. ओके, हितेश मुझे बोला है, सी आई विल एक्सप्लेन हियर. आई हैव बीन टोल्ड कि मुझे एवरी ईयर 20% इंटरेस्ट मिलेगा. बट मुझे इंटरेस्ट वो लोग देंगे 6 महीने पे. एवरी 6 मंथ्स आई विल गेट एन इंटरेस्ट. मतलब क्या हुआ, मेरा जितना भी एक्स वैल्यू था ना, 6 महीने बाद वो वैल्यू पे मुझे वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट देंगे. बाद में ये टोटल वैल्यू पे मुझे 6 महीने बाद वापस थोड़ा इंटरेस्ट देंगे. बाद में वापस ये वैल्यू पे मुझे 6 महीने बाद इंटरेस्ट देंगे. तो ये मैं ऐसे करूं तो मुझे क्या हो रहा है, मुझे ओवरऑल एक साल में टोटल 20% इंटरेस्ट मिल रहा है. बट वो 20% एक साथ नहीं मिल रहा. मुझे क्या मिल रहा है, पहले 10% मिला 6 महीने का, एंड बाद में मुझे ये 6 महीने का 10% मिला, बाद में वापस ये 6 महीने का 10% मिला. सो दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग. हमें 20% पर एनम दिया है, मतलब हम 6 महीने में डिवाइड कर सकते हैं. तो एवरी 6 मंथ्स आई एम गेटिंग 10% इंटरेस्ट. दैट इज व्हाट द लॉजिक इज. एवरीबॉडी अंडरस्टूड नाउ? Guys, is everybody fine with this? Chalo. Great. We'll move ahead. An amount invested at compound interest. Guys, I've used shortcuts है, वो CISI समझ लेना. I've not used full words. मैं खुद टाइप करता हूँ. An amount invested at compound interest becomes 25 times itself in 5 years and 36 times itself in 7 years. What is the rate at which it has been invested? Now, this is my favorite kind of a sum. Does this look scary? Like, seriously, does this look scary for everyone? Normally? कि कैसे करेंगे? Yeah. Now, I'll first show you the proper method and then I will show you my trick. Okay?
The proper method is I will use the formula. नहीं वैष्णवी, this is not worth skipping. This is a 30 second का sum. 30 second में नहीं, 10 second का sum है. I'll show you the proper formula first. The proper हम normal जो method है उसे ढूंढेंगे. A equals to P 1 plus R upon 100 raised to N. तो 25 equals to P into 1 plus R upon 100 the whole raised to 5. बाद में 36 equals to P into 1 plus R upon 100 the whole raised to 7. सही है? I will divide these. No Hitesh, गलत है. Okay wait, I'll to make it easier मैं ऊपर बड़ा वाला लेता हूँ. Okay? मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ. 7 and 36 and 25 and 5. Let's take a ratio. तो अगर मैं इसको x ले लूं, let's assume that this is x. तो 1 plus r by 100 is x. तो ये कट होके ये 2 हो जाएगा. x raised to 2. प्रिंसिपल कट हो जाएगा. So that is 36 by 25 is equal to x squared. X is how much? 1 plus r upon 100. So let's write it down as that. 1 plus r upon 100 the whole square. So 1 plus r upon 100 is how much? The root of this, that is 6 by 5. तो हम इसको वो बाजू ले लेंगे. I will have r equals to, let's take in the similar fashion, 1 plus r upon 100 equals to 1 plus 5, sorry 1 plus 1 upon 5. So that means ये 1 कैंसिल हो गया. r by 100 equals to 1 by 5. r by 100 मतलब r%, sorry, r% is 1.5, 1 by 5. तो रेट मेरा कितना हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1.5 मतलब कितना परसेंट? 20%. दैट इज माई आंसर. ये समझे सबको गाइस? मैंने क्या किया? मैंने पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया. ओके, नाउ लेट्स ट्राई विथ माय मेथड. कूल. मुझे क्या दिया है? दोनों का पहले रेशियो लिख दो. 36 by 25. ओके, ये कितने साल में है? 7 साल में. ये कितने साल में? 5 साल में. इनका डिफरेंस कितना है? 5 और 5 में डिफरेंस कितना हो गया? 2. तो स्क्वायर रूट ले लो. सो दैट इज 6 by 5. 6 by 5 इज हाउ मच एक्स्ट्रा? मतलब 1 by 1 प्लस 1 by 5 एक्स्ट्रा है ना? समझ रहे हो? सो दैट इज 20% एक्स्ट्रा. यू गॉट योर आंसर. समझा? टेल मी वैष्णवी, अगर ये मेथड है तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में? It barely takes 10-20 seconds. This works every time. And now the next sum is even better, because in the next sum you have been given an amount becomes 8 times itself in 2 years and 27 times itself in 5 years. What is the rate of compound interest? So here what you have been given, let's write it down again. 27 times in how many years? 5 years and 8 times in 2 years. डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 3 का है. तो हम क्या करेंगे? वी विल टेक क्यूब रूट. 3 का डिफरेंस तो क्यूब रूट ले लेंगे. 2 का डिफरेंस है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे. क्यूब रूट इज 3 by 2. सो दिस इज हाउ मच एक्स्ट्रा? 3 by 2 मतलब कितना एक्स्ट्रा है? Exactly 50% extra, and that is your answer. It is 50%. समझा सबको guys? Vaishnavi, now does it seem even a little scary? Yes, Dhiren, in such sums you will be given only in such numbers. So this is why this chapter is one of my favorites, because it can be done so quickly. But provided that you don't use formulas.
Harshita, you will be given sums only like that, because if I even make a sum for you na right now, it will be formed in that fashion only. Like if you want to try ना, तो एक बार try कर लेना कि तुम 20% ले रही हो, 20% देखो कि कितने साल में डबल हो जाएगा, कितने साल में 3 टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम में 4 टाइम्स हो जाएगा. So that will give you a similar pattern. तुम्हें वो number of years perfect cube में ही मिलेगा, perfect cube या फिर perfect square. चलो, now this sum is pretty simple. A sum of money doubles itself in 4 years. In how many years will it become 12 times the original value? x था, 4 साल के बाद 2x हो गया, तो they have told कि 12 टाइम्स कितने टाइम में होगा? When will it be 12 times? 4x, वापस 4 साल के बाद, वापस 4 साल के बाद कितना? 8x. एंड इसके बाद मुझे पूरा नहीं करना है, मुझे बस आधा चाहिए ना. आई हैव टू मल्टीप्लाई ओनली बाय 0.1.5. मुझे इसका मैं डबल कर दूंगा, 4 साल में कितना बढ़ेगा? 4 साल में 8 बढ़ जाएगा, तो मुझे आधा चाहिए, तो मैं 4 नहीं करूंगा, ये 4, ये 4, ये 4 और इधर 2, तो ही मुझे आधा मिलेगा. सो दैट इज हाउ मेनी इयर्स? कितने हो गए टोटल साल? 14 एग्जैक्टली. नहीं हेमंत, 14, 16 नहीं. मैंने इधर 4 नहीं लिया, मैंने इधर 2 लिया, क्योंकि अगर मैं 4 ले लूंगा ना तो ये 16 हो जाएगा, ये 8x का जगह पे 16x हो जाएगा, डबल होता है ना वैल्यू. ओके वैष्णव, आई सॉल्व इट अगेन. या सो इन द सम वी हैव बीन गिवन कि पैसा x था, 4 साल के बाद 2x हो गया, तो दे वांट टू नो कि 12x कब होगा. सो लेट्स कीप गोइंग इन द सेम फैशन. 4 साल के बाद कितना हो जाएगा? 4x. वापस 4 साल के बाद कितना हो जाएगा? 8x. वापस 4 साल के बाद कितना हो जाएगा? 16x. तो ये 4 साल में कितने x बढ़ गए? ये 4 साल में 8x बढ़ गया ना, पर मुझे तो 4x ही बढ़ाना है, तो मैं 4 साल लूंगा? नहीं, मैं सिर्फ लास्ट में 2 साल लूंगा. सो दैट इज हाउ आई गॉट, अगर 4 साल में डबल हुआ तो इट विल बी 4 + 4 + 4 12, 12 + 2 14. इट विल बिकम 14 ईयर्स में 12x वैल्यू. समझा वैष्णव? डिड यू अंडरस्टैंड? वैष्णव, वेटिंग फॉर आंसर. लास्ट में 16 आएगा ना वैष्णवी? देखो मैंने हर एवरी टाइम क्या हो रहा है, एवरी 4 years द अमाउंट गेट्स डबल्ड, वो इंटू 2 हो जाता है. एवरी 4 years my amount gets doubled into 2 into 2. तो इधर मुझे into 2 नहीं चाहिए, मुझे इधर बस into 1.5 चाहिए, 50% इंक्रीज चाहिए. ओके, आई एम ग्लैड यू अंडरस्टूड. चलो लेट्स मूव अहेड. चलो, a sum of money triples itself in 15 years. In how many times, in how many years will it become 20 times the original value? You guys tell me the answer. It should take seconds. 3 साल में 15 साल में ट्रिपल हुआ, तो 27 टाइम्स कब होगा? No way, you are wrong. In 3 years it becomes triple. Sorry, in 15 years. तो अगले 15 years में कितना हो जाएगा? 9. अगले 15 years में कितना हो जाएगा? 27. हेमंत नहीं, 30 years कैसे आया? It has to be 45. Okay. सबको समझा गाइस? Did everybody understand how this sum is to be done?
So yeah, the total is 40. Answer is 45. राज, ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने 2 बार चैप्टर में कर दिया, लाइक अभी ये क्लास में कर दिया है। एक बार बस रिकॉर्डिंग देख लेना, बिकॉज अपने पास बहुत सारे सम्स है। वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ सम्स टू सॉल्व, 31। एक बार बस रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर नहीं समझा तो मुझे वापस कॉल लगा दे, ओके, आफ्टर द लेक्चर। चलो, now guys, an amount becomes 2.25 times itself in 2 years. यस हितेश, सीईटी में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आता है, लाइक यही साल यही टाइप का क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। द क्वेश्चंस व्हिच इफ यू सॉल्व बाय वेरी जनरल मेथड्स तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। सो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ माय कोर्स ना, मतलब तुम्हें टाइम कम लगना चाहिए, वही तो मेन पॉइंट है मेरा, अदरवाइज यू वुडंट बी विद मी। ओके, चलो गाइस, an amount becomes 2.25 times itself in 2 years on compound interest. What is the rate of interest? Tell me a way to find this. No way, गलत है। Guys, tell me what we will do here. This is the key point. ये एकदम की पॉइंट है, जरूरी है। गाइस, थोड़ा टेढ़ा सोचो, थोड़ा टेढ़ा सोचो। That's what I always tell you. Yes, Dhiren, you're right. I'll explain how. The answer is 50%. I'll explain how. The amount became, पहले 100 था तो अब 225 हो गया, right? Yes, Dhiren, exactly. Guys, I've always told you, always make 100 your best friend. Always assume 100. So, पहले amount 100 था, अब 225 हो गया, because it became 2.25 times itself. तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला? तो how much is my interest? Tell me मेरा इंटरेस्ट कितना है? Exactly, 125 is my interest. मुझे 125 मिला 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो अब थोड़ा दिमाग यूज करो, यू विल बी गिवन नंबर्स ऐसे ही, तुम्हें ऐसे ही टाइप के नंबर्स देंगे। समझो अगर तुम्हारा 50% इंटरेस्ट है, ये तुम्हें देख के पता चलना चाहिए, तो मुझे पहले साल में 50 मिलेगा एंड दूसरे साल में 50 प्लस 25 मिलेगा, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट पे भी पैसा मिलेगा ना, इंटरेस्ट पे भी 50% मिलेगा। सो माई टोटल इंटरेस्ट विल बी 125। समझा? सो ये तुम्हें जनरली तुम नंबर्स देखने लगोगे ज्यादा, तब तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि अच्छा 50 में अगर 2 साल है तो मतलब मेरा 125 हो जाएगा। ये समझा सबको कैसे आया 50? ओके, समझो अगर मुझे 20 दिया था तो मुझे पहले साल में 20 मिलता, दिस इज माई फर्स्ट ईयर, दिस इज माई सेकेंड ईयर। तो दूसरे साल में कितना मिलता? 20 प्लस इस पे 20%, इसका 20% मतलब कितना? 4। सो माई ओवरऑल इंटरेस्ट इज हाउ मच? 44 रुपीज ऑन 100 रुपीज। तो ये जनरली एज यू कीप सीइंग सम्स ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि 125 इज अ वेरी जेनेरिक नंबर, जो अगर समझो अगर मेरा 50% इंटरेस्ट है ना, तो मुझे पहले साल में कितना मिलेगा? 50% इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा? 50% ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, एंड ये इंटरेस्ट पे मुझे पैसा मिलेगा ना, कितना मिलेगा? इसका 50%, तो इसका 50% इज 25। सो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? टेल मी साक्षी, व्हाट इज माय टोटल इंटरेस्ट? साक्षी, एग्जैक्टली 125। अब समझा सबको कैसे आया ये? देयर आर फ्यू पीपल हु हैड अ डाउट। तो साक्षी था एंड हेमंत था, सबको समझा ये? आई एम ग्लैड। So this is how you will be able to do sums much faster in simple interest, compound interest. Guys, tell me, 9th का आंसर दे दो। ये तुमने नंबर अभी देखा। An amount became 1.331 times itself in 3 years. What is the rate of interest? No way, 11 नहीं आएगा। What is the rate of interest I'm asking? The rate of interest is 10%. Exactly.
Who said 1.1? हेमंत एंड देवलीना. देवलीना अंडरस्टैंड वो 1.1 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है. मतलब समझो अगर मेरी कोई चीज 10% से बढ़ गई ना, सो इफ आई हैव 100 एंड इफ इट इज इंक्रीज बाय 10%, सो उसका मतलब आई हैव टू स्टेट में मल्टीप्लाई इट बाय 1.1. दैट इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर. बट 1.1 का मतलब क्या कि मेरा 10% वैल्यू बढ़ा है. तो समझो अगर मेरा 20% बढ़ा ना, तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 1.2. अगर मेरा 30% वैल्यू बढ़ा तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 1.3 because 1 is the original and 0.3 is the interest that I'm getting for the multiplication factor. समझा? Did everybody understand this? 1.3 कहां से आया? Okay, great. An amount became 1.44 times itself in 2 years on compound interest. What is the rate of interest? Tell me guys, rate of interest कितना? Great, 20. हेमंत आप वापस गलती कर रहे हैं. 12 नहीं, 20. 20% इंक्रीज हुआ तो मैं 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा. और व्हाट यू वेरी सिंपली कैन डू इज 3 साल दिया है ना, तो इसका क्यूब रूट ले लो. यू कैन टेक अ क्यूब रूट ऑफ दिस. 1331 का क्यूब रूट इज 1.1. सो 1.1 इज अ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर. तो यहाँ पे 2 इयर्स है ना, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लो. 144 का स्क्वायर रूट क्या है? व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144? एग्जैक्टली 12. सो 144 का 1.44 का स्क्वायर रूट इज 1.2. दैट मीन्स 1.2 इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर. 1.2 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का मतलब 20% इंटरेस्ट. समझा सबको? यस पीपल. नाउ 11th वाला चलो. An amount became 3/8 times itself in 3 years on compound interest. What is the rate of interest? Tell me. What is 3/8? Hello guys, tell me what is 3/8? Exactly, 27/8. So how will I do this? Tell me guys, how will I do this? मेरा अमाउंट जितना था उसका 27/8 हो गया है एंड 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे. तो व्हाट विल आई डू? एग्जैक्टली क्यूब रूट ऑफ 27/8 बिकॉज 3 साल है ना. 3 साल मतलब क्यूब रूट. तो 27/8 का क्यूब रूट दैट इज हाउ मच? 3/2. 3/2 मतलब कितना ज्यादा है? 50% एक्स्ट्रा. सो योर आंसर इज 50%. समझा सबको? ग्रेट. नाउ इज कंपाउंड इंटरेस्ट बिकमिंग अ लेस स्कैरी टॉपिक फॉर यू गाइस? नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत डर लगता है लोगों को, बट इज इट दैट स्कैरी? टेल मी नाउ. आई डोंट थिंक इट्स स्कैरी एट ऑल. चलो, इट्स जस्ट दैट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए. या एट व्हाट रेट पर एनम will 32,000 yield a compound interest of 5.44 in 9 months? गाइस 9 months दिया है, मतलब मैं क्या करूंगा? एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली. कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब मेरा कितना पीरियड हुआ है? व्हाट इज माय एन ईयर? एग्जैक्टली n इक्वल्स 3. परफेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ गाइस? मेरा अमाउंट, मेरा प्रिंसिपल इतना था, मेरा अमाउंट इतना है. लेट्स टेक अ रेशियो अगेन. प्रिंसिपल इज 32,000. तो मेरा अमाउंट कितना है? हाउ मच इज माय अमाउंट? प्लीज समबडी हेल्प मी विद द अमाउंट. नो हेमंत, ये देखो क्या है. 5044 is the interest that you got. Exactly, Ved. The amount is 37,044. समझ रहे हो?
Guys, did everybody understand what is happening here? चलो, तो अब क्या करेंगे, रेशियो है ना, कटिंग चालू कर देते, लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग. रेशियो में जितना हो सके उतना कम कर लेने का. डिवाइड बाय 8000, ये कितना हो जाएगा, 9261. Guys, do these numbers seem similar? 8000 and 9261. What are these numbers? 9000 and 9261, 8000 and 9261. These are the cubes of 20 and 21. 9261 is 21 का क्यूब. याद है सबको, मैंने क्यूब का वो मेथड बताया था कैसे करने का. क्यूब का मेथड, पहले 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, बाद में 2 का स्क्वायर, बाद में 2 and 1, और इन दोनों का डबल 8 and 4 ऐड कर दो. मैंने स्पीड मैथ्स वाले लेक्चर में पढ़ाया था. जो लोग स्पीड मैथ्स लेक्चर अभी तक नया नया है उन लोग स्पीड मैथ्स का लेक्चर देख लो. दिस इज 6 12 1 कैरी ओवर 9261, राइट. सो नाउ माय आंसर, क्यूब रूट ले लिया तो मेरा आ गया 20/21. What rate per annum is this, guys? 20 था, 21 हो गया, तो कितने से मेरा बढ़ गया? What is the increase? 5%. Exactly. समझा guys? Till now there is not even one sum जिसको तुम्हें 20-30 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगेगा. समझ रहे हो गाइस? डू यू अग्री विद मी ऑन दिस कि तुम्हें इसके लिए 20-30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा. वैष्णवी, 20 and 21 आर द क्यूब रूट्स. मुझे 8000 आया था ना, 8000 is to 9261, तो मतलब इनका क्यूब रूट मैंने ले लिया दोनों का. So that is 20/21. मतलब दिस इज माई प्रिंसिपल. ये किसका रेशियो है? 32,000, मतलब माई प्रिंसिपल अमाउंट टू द इंटरेस्ट के साथ मेरा ओवरऑल अमाउंट. तो अमाउंट और प्रिंसिपल में कितना फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल? द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो 20 से 21 में कितना बढ़ा? इट इंक्रीज बाय 1. 1/20 इज हाउ मच? What is 1/20? 5%. Exactly. So that is how I got 5%. राज वो हमेशा क्यूब रूट ही हुआ. You can't have not cube roots. Dhiren, I remember cube roots still, like I remember cubes till 36. Like मुझे 35-36 तक के क्यूब्स याद है. It's up to you guys, तुम कहां तक याद रख रहे हो. लाइक मुझे अभी 35-36 तक के याद है. आई एम प्रिटी श्योर जब मैं दे रहा था सीईटी तब मुझे आराम से 45 तक क्यूब्स याद थे. तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. द हायर यू गो द बेटर इट विल बी फॉर यू. ओके, चलो गाइस, अगेन सेम थिंग. एट व्हाट रेट परसेंट per annum will 2304 amount to 2500 in 2 years? Let's do it. 2304 2500. क्या करेंगे? रेशियो है ना, लेट्स डिवाइड. दोनों 4 से डिवाइड होगा. 4 into 6 25. 4 into how much? एक मिनट, खाली कोई एंट्री मार रहा है. Yeah. 4 into how much? 576. अब क्या करेंगे? ये कितने साल है? 2 years. So 2 years मतलब क्या करेंगे इसका? 2 years का मतलब I will take a square root. So that is 24/25.
तो मतलब मेरा कितने से बढ़ा? 1/24 से। 1/24 is how much percent? No, wait, it is not 4%. It is a little more than 4%. कितना परसेंट है? It is 4 1/6. Not even 4.1. 4 1/6. That is the answer. Yes, 4.1666667. समझा सबको आंसर गाइस? Did everybody understand the sum? ग्रेट. चलो हेमंत, हमें पहले वाले सम में इंटरेस्ट दिया था तो इसलिए हमने ऐड किया. इधर हमें डायरेक्टली अमाउंट दिया है 2300 अमाउंट्स टू 2500. हमें सीधा अमाउंट दिया है. तो पहले जब हमें रेशियो किसका लेना था? प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशियो लेना था ना, तो इसलिए वी हैड टू ऐड इट. अब ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि सीधा अमाउंट दिया है. समझा? ग्रेट. चलो 14 sum. Very classic example of a CET sum. What is the difference in SI and CI on an amount of 2000 invested at 5% for 2 years? Guys, very simple method. बहुत simple है. बहुत simple method है. अगर ऐसा दिया है ना, सीधा ऐसा ड्रॉ कर लो. See carefully what I am drawing. एक सर्कल, दो सर्कल, दो सर्कल, एक सर्कल, ऐसा ड्रॉ कर दो. इधर अपना प्रिंसिपल अमाउंट लिख दो 2000. दिस इज लेवल 1. 2 साल के लिए है ना. लेवल 1 लेवल 2 या फिर लेवल 1 लेवल 2 छोड़ो, वो लिखो मत, फायदा नहीं है. हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है गाइस? व्हाट इज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%. तो इसका 5% कितना है? व्हाट इज 5%? 100 एंड 100. एंड इधर एक लाइन मार दो. इसका 5% लिख दो. इसका 5% कितना? हाउ मच इज 100 का 5%? 5. ये कभी भी यूज करो. दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट. एंड अगर तुम नीचे वाला इंक्लूड कर दो तो दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क कितना है? 5 रुपीज. समझा सबको गाइस? Remember this will help you a lot and this is very easy as compared to solving for both. वरना तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा PNR upon 100. So that is how much? 2000 into 2 into 5 by 100. That is how much? 200. बाद में तुम ढूंढोगे कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट चलो अगर तुम वो मेथड से भी ढूंढ लो कि पहले साल में 100 मिलेगा, दूसरे साल में 100 मिलेगा और इस पे 5% मिलेगा. सो दैट इज टोटल 205. सो डिफरेंस कितना हो गया? 5 रुपीज. तो इससे अच्छा माई फॉर्मूला वर्क्स बेटर. यश आएगा 3 इयर्स के लिए भी पूछा तो आएगा, डोंट वरी. है ट्रिक है. As Zakir Khan being my favorite comedian, he says ना, भाई आया बता के जाएगा. Yeah, चलो, we will do another sum in the same way, okay? इसका आंसर कितना मिला गाइस? What is the difference here? 14th का आंसर क्या है? कितने रुपीस? ₹5 exactly. चलो, what is the difference in SI and CI on an amount of 1000 invested at 10% for 2 years? वापस 2 years वाला आ गया. Let's try. 4 सर्कल ड्रॉ कर देते हैं. पहले क्या आ जाएगा? 1000. कितना इंटरेस्ट है? तो 10% मतलब 100 एंड बाद में इसका 10% ले लेंगे. तो डिफरेंस कितना है? ये सिंपल इंटरेस्ट और ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट. व्हाट इज द डिफरेंस? Exactly 10 rupees. Do you like the method guys? Is it much faster than solving normally?
ग्रेट, एक मिनट। चलो, नाउ गाइस वी आर अप टू 3 इयर्स वाला। हेमंत वो हर बार नहीं होगा, ये तो कोइंसिडेंस था कि दोनों सब में क्योंकि वैल्यूज वैसी थी ना, इसीलिए वैसा वो जितना परसेंट था उतना ही आया। डोंट रिलाई ऑन दैट। ऐसा नहीं होगा कि 5% में 5 रुपीज आएगा, 10% में 10 रुपीज आएगा। दैट इज नॉट द राइट वे। ऐसा कुछ भी जुगाड़ मत लगा। ओके गाइस, नाउ 3 साल का, वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट इज 3 इयर्स का। 2 इयर्स में कैसा था? I wrote like this ना। अब 3 इयर्स में इट इज अ लिटिल डिफरेंट। 3 इयर्स में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट इधर बाजू में लिख दो जितना भी है, एंड बाद में राइट ऐसे सर्कल्स। देखो कैसे बना रहा हूं मैं सर्कल्स, ध्यान से देखो। This is A, this is level B, and this is level C. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। सो समझो अगर 10% है, समझो अगर ये मुझे x दिया है, चलो x नहीं, लेट्स टेक अ नंबर। इफ आई बीन गिवन 1000, सो 10% इंटरेस्ट के हिसाब से a कितना हो जाएगा? a विल बी 10% ऑफ p। व्हाट इज ईच एंड एवरी a? हाँ गाइस, a का वैल्यू इज 100। परफेक्ट। b इज a का 10%। a का 10% मतलब b का वैल्यू कितना हो गया? 10। परफेक्ट। एंड c इज b का 10%, मतलब c का वैल्यू कितना हो गया? 1। हो गया अपना सम। सिंपल इंटरेस्ट इज लेवल ए। सिर्फ लेवल ए को ऐड कर दोगे, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए। अगर तुम बी और सी को ऐड कर दोगे टोटल में, तो तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का मिल गया। और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना होगा? टोटल माइनस, छोड़ो, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी बी प्लस सी, दैट इज 10 10 10 1, दैट इज 31। समझा सबको गाइस? Does everybody understand this method? I need a yes. Chalo, I'm glad everybody is understanding. Chalo, now let's move on to the sum. Amount कितना है? 10,000। SICI का डिफरेंस ढूंढना है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? What will be A? A will be 10%, that is 1,000. B is 100 and C is 10. तो 3A, 3B and 1C ये होता है ना। There are 3 A's, there are 3 B's and 1 C. So the difference is 3B plus 1C. That is 310. समझा सबको ये मैंने 3B plus 1C क्या किया? Did everybody understand 3B plus 1C वाला लॉजिक? अब देखो guys, again does this take anything more than 20 seconds? Like 20 seconds से ज्यादा तुम ये सब में डाल ही नहीं सकते। Exactly. I told you स्टार्ट में बोला था आज का सेशन बहुत मस्त होगा। चलो, difference of SI and CI amount invested at 6/2/3 for 3 years is 57. What is the principal amount? Very good sum, guys. Very good sum. Now we इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम उल्टा जाएंगे। Let's draw. ये जो नंबर याद रख लो, 16/2/3, 3 and 57। चलो,
इसमें व्हाट वी विल डू इज वी विल ड्रॉ पहले एंड बाद में नंबर्स डालेंगे. सो ए, this is B, this is again 2B, and this is C. Guys, 16 2 by 3 मतलब क्या होगा? What is 16 2 by 3? 16 2 by 3 परसेंट मतलब क्या फ्रैक्शन क्या हो गया? Tell me the fraction. 6% क्या होता है भाई? Exactly 1 by 6. Guys, तुम लोगों ने स्पीड मैथ्स लेक्चर मतलब बराबर से प्रिपेयर नहीं किया है. स्पीड मैथ्स में मैंने बोला था जख मार के सारे फ्रैक्शंस तुम लोग को याद होने चाहिए. एटलीस्ट 1/25 तक सारे फ्रैक्शंस याद कर लो, रट लो. So 16 2 by 3 is 1 by 6. Now इसका मतलब क्या? जो A है, A का वैल्यू को 1 by 6 करेंगे तो B का वैल्यू आएगा, एंड B का वैल्यू को 1 by 6 करेंगे तो C का वैल्यू आएगा. तो समझो अगर मेरा C is 1 तो B कितना हो जाएगा? If C is 1 तो B कितना हो गया? 6. Exactly. If B is 6 तो A कितना हो गया? 36. If A is 36 तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? How much is my principal? 36 into 6 कितना आता है? हाँ 216. Guys, 6 cube. Wait, that is really. छोड़, मुझे गाली नहीं देनी है. 96 कौन बोलता है रे? 6 का क्यूब नहीं पता तुम लोगों को? So 216 is the value. But ये कब होगा? जब मेरा C 1 है. But have I been given C का आंसर 1 है? नहीं. मुझे क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है that is 57. Right? That is what I have been given. What is simple interest and compound interest का डिफरेंस guys? ये ABC में से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है? Not B plus C, that is 3B plus C. Exactly 3B plus C. So 3B plus C कितना हो गया? 6 plus 6 plus 6 plus 1, that is 19. 19 और 57 का क्या रिलेशनशिप है? इंटू 3 है ना, तो इसको भी इंटू 3 कर दो, दैट इज 648. दैट इज योर आंसर. दैट्स इट गाइस. अगर इसको इंटू 3 कर दो, उधर भी इंटू 3 कर दो, दैट इज योर आंसर. समझ रहे सबको? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड? मैं नॉर्मली ऊपर से नीचे आ रहा था, इस बार मैं नीचे से ऊपर गया. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मोस्ट लोग ये क्वेश्चन छोड़ देते, बट उल्टा ये क्वेश्चन करने लायक था. ये क्वेश्चन करने को मुश्किल से 10 15 20 सेकंड लगेंगे अगर तुम्हें मेथड आता है तो. सो या सुदीप, एक बार बस रिकॉर्डिंग वापस देख ले, ठीक है? ऑलरेडी वी आर ओनली हाफ वे डाउन और अपने पास टाइम इतना बचा नहीं है. ओके. At what rate per annum 3200 would yield? ये तो हो गया, ये रिपीट क्वेश्चन है. सॉरी गाइस, ये रिपीट हुआ. हाँ, ये सम अमेजिंग सम गाइस. A person wants to distribute a sum of 3,90,300 between his two sons who are respectively 13 years and 15 years old. But each person invested their share at 4% per annum compounded annually. At the age of 18 years, both receive equal amount. What is the share of younger son? Guys, मुझे बोलो, किसका शेयर ज्यादा होना चाहिए? यंगर सन का शेयर ज्यादा होगा या ओल्डर सन का शेयर ज्यादा होगा? ग्रेट, इट इज द यंगर वन. क्यों? क्योंकि यंगर सन को 5 साल में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है एंड
बड़े वाले को बड़े वाले को 3 ही साल है एंड दे गेट द सेम अमाउंट. समझ रहे हो? मतलब यंगर वन को इंटरेस्ट इनकम ज्यादा मिला है एंड ओल्डर वन को प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा मिला है. समझा सबको मैं क्या बोल रहा हूं? द इंटरेस्ट इनकम ऑफ द यंगर सन वॉज मोर एंड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द ओल्डर सन वॉज मोर. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. ग्रेट. सो नाउ थोड़ा डिफिकल्ट सा है गाइस, ध्यान से देखो. आई विल गो स्लो, आई विल सॉल्व इट ट्वाइस, बट थोड़ा ध्यान से देखो. दोनों में एज का कितना डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एज? 2 years. तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे? बाय डिफॉल्ट व्हाट विल वी डू इज नॉर्मली स्क्वायर रूट करते हैं जब हमें उल्टा ढूंढना होता है, पर यहां हम स्क्वायर करेंगे. द पावर शुड बी 2. ओके, तो छोटे वाला 5 साल के लिए कमाएगा एंड बड़ा वाला 3 साल के लिए कमाएगा. एंड बिकॉज डिफरेंस 2 साल का है, सो दैट इज वाई आई विल टेक इट एज स्क्वायर. दैट इज 25:9. ये क्या है? दैट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट दैट दे आर गेटिंग. ओके, नॉट द अमाउंट दैट दे आर गेटिंग, द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट इनकम. इसका इंटरेस्ट इनकम 25 है और इसका इंटरेस्ट इनकम 9 है. ये समझ रहे हैं सबको? इंटरेस्ट इनकम है ये इनका. डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, I'm glad. So 25:9 है. Now let's go down. The person invests their share at 4% per annum compounded annually. 4% per annum compounded annually. At what age 18 years equals? Find the share of younger son. अरे कुछ तो मेरा मिस्टेक हुआ है. Guys, I missed out something. एक मिनट कल. I'll come back to the sum later. Is it fine if I come back to the sum later, guys? I'm really sorry, मेरा कुछ तो मिस्टेक हो रहा है इसमें. I'm missing out something. I just forgot something. I'll come back to this in after some time. चलो. 21. Amazing sum. And amount. This is a very scary looking sum. Okay. Read 21 and tell me if it scares you a little. ये x नहीं है. That is not x. That is x. मतलब वो tell me how does 21 look like? Does it look a little scary? It is actually एकदम चिंदी सम. बहुत चिंदी है. चलो, I explain how. An amount is lent at y% per annum at SI for 2 years. तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? Amount is let's take the amount as x. हाँ, let's take the amount as a. अरे यार, अच्छा सर मेरा कलर अलग है. मैं वही सोचूं कलर नहीं यार. Let's take the amount as a. A into number of years, that is 2 into y by 100. This is my interest income. In the first case, मेरा interest income इतना है, right? So what about the second case? If it is lent at 2y%, तो मतलब अगर 2y% होता for x more years, 2 plus x years, then the interest would have been 5 times the value of y. 5 times the earlier interest divided by 100.
एंड इधर 5. सबको समझा ये इक्वेशन गाइस? डिड everybody अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन? गाइस डिड everybody अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन? दिस इज नो डिफरेंट, मैंने बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाला है. 100 कैंसिल, a कैंसिल, y कैंसिल, 10 इक्वल्स टू, सॉरी 10 है ना, तो इधर 2 कैंसिल, 5 equals to 2 plus x. So what is x? The equation has come down to 5 equals to 2 plus x. So what is x? X is 3. समझ रहे हो? अच्छा वो सॉरी मैंने अगर मिस्टेक किया, we have to find the value of y. My bad. We have to find the value of x. We can never find the value of y, we have to find the value of x. Sorry guys, that was a little bad on my part. But सबको समझा ये 3 कैसे आया? Was it an easy sum? When I put it down on paper, was it easy? I'm glad. Always in CET understand कि बहुत बार सम डिफिकल्ट दिखेगा, बट जनरली डिफिकल्ट दिखने वाले सम बहुत इजी होते हैं. जनरली ऐसा होता है सीईटी में. I'll make this change and upload the PDF guys. मैं PDF वापस भेज दूंगा तुम लोगों को. Guys solve the 20-second sum. चलो 20-second sum खुद से solve करो. I want the answer. गाइस इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. You have to find 7300 का 6% and उसका 6%. That's it, because 2 साल है ना. So how will you do this? 7300 into 6 by 100 into 6 by 100. That is 0 cut. 73 into 36. 8 1. 9 plus 42. 9 plus 42 51 52. 5 21 26. 26.28 is the answer. समझा गाइस सबको? Do everybody understand this sum? And why did I not get answers? Why did I get only one answer from one person? Guys, इसको टाइम नहीं लगना चाहिए था. This was a very easy sum. Please work on your speed. चलो guys, the simple interest obtained on an amount of 45,000 at the end of 4 years is 15,300. 4 साल में इतना सिंपल इंटरेस्ट है, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? कैन आई फाइंड 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट? हाउ विल आई फाइंड 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट? Exactly, divide by 4, very simple. 15,300 divided by 4. For now, don't even find the answer. अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने दो. That is the interest per year. So that is 15,300 divided by 4 equals to 45,000 into 4 into R by 100.
100 कैंसिल, इधर का एक 0 गया, ये 4 यहाँ नीचे आ जाएगा तो इधर हो गया 16 एंड ये 45 इधर आ गया, कैंसिल. सो व्हाट इज आर? टेल मी व्हाट इज आर? दिस इज 17, 9 into 5. R is 17 by 80. That is your rate of interest. How much is that? रुको मेरा कुछ तो calculation लोचा है, but did you understand what I did here? I'll do the calculation again. 18300. Yeah, 17 by 80 आ रहा है नीचे. 17 by 80. This is your rate of interest. तो हमें सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ढूंढना है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 साल में कितना मिलेगा. सो दैट्स इट. हाउ विल डू दिस गाइस? व्हाट इज द इजीयर वे टू डू दिस? इतना मिल गया ना, इसके बाद विल डू द बी एंड सी. सो एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 1 ईयर का इंटरेस्ट इज 15,300 डिवाइडेड बाय 4. So that is 3825. 3825 per year, right? So now we'll simply keep वो simple interest ले लेंगे. 3825 is A. तो B और C का वैल्यू ढूंढो. What is B and C का वैल्यू? Guys, I'm waiting. B and C का वैल्यू ढूंढो. But guys, did you notice one thing in the question? I missed out on this detail. Approximate compound interest. So that means मैं rate of interest को approximate कर सकता हूँ. So that is 17 by 80 आया था ना? I can take it as 16 by 80. 16 by 80 is how much? 5. 1 by 5. 20%. I missed out on that detail. Approximate बारे में भूल गया. 20% is the rate of interest. तो compound interest के हिसाब से ढूंढ लो. 3 साल का कितना आएगा? 1.2 into 1.2 into 1.2. That is, what is 12 cube? Somebody help me, what is 12 cube? कुछ भी है वैष्णवी. नो धीरेन 1728. 1.728 से मल्टीप्लाई करना है. 45,000 को मल्टीप्लाई कर दो 1.728 से. दैट इज योर आंसर. 1,728 into 45. 504. 10 plus 32 plus 10 plus 36. 46. 4. 35 plus 8, 43, 47, 4, 5 plus 28, 33, 37, 3, and 4, 7. That is your answer. That is your answer, guys. 77,760. समझा सबको मैंने क्या किया? It became much easier after the approximation, right? Approximation was the main point to note here. समझा सबको गाइस? Do everybody understand? Guys, I'm waiting for your answers. तो ही मैं आगे बढ़ सकूंगा. Okay.
वैष्णवी, आई एम रियली लो ऑन टाइम और अपने पास बहुत वाला पार्ट बचा है. ओके, आई सॉल्व इट अगेन. ओके चलो, मुझे 2-3 लोगों का आया है. चलो. हाँ. मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 15,300 डिवाइडेड बाय 4 पर ईयर का इक्वल्स टू PNR इंटू 100, दैट इज 45,000 इंटू आर इंटू 4/100. सो मेरा इसका वैल्यू कितना आया? 17/80. So to approximate it, I made this 16. So that is 1/5, which is 20%. So मतलब मुझे rate of interest 20% आ गया. I hope everybody understood till here. Now what I did was that हमने वो कैसे किया था? 10% में 1.1 को मल्टीप्लाई किया था ना. So अब 20% है, so I will multiply 1.2. That is 1.728. This is 12 का क्यूब. So this is the multiplication factor. कैसे? अगर ये होता था तो मैं जितना भी वैल्यू था उसको 1.331 से मल्टीप्लाई करता था ना, तो इधर में 1.728 से मल्टीप्लाई कर दिया. 45,000 इंटू 1.728, that is 77760. That is your answer. समझा वैष्णवी एंड हितेश? ओके चलो, आज बहुत लंबा जाना है. The compound interest accrued on an amount of 25,000 at the end of 3 years is this much. What would be the simple interest accrued on the same amount at the same rate in the same period? Guys, कैसे करेंगे? We will take ratio of amount and principal. जैसा मैं पहले किया था ना स्टार्ट में, वैसा वाला समय है. काफी इजी है एक्चुअली. प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है? 25,500. अमाउंट कितना है? 33,940.5. इज दैट राइट? सबको समझा है क्या किया मैंने? ये समझा सबको कैसे आया 33,940.5? अब क्या करेंगे? सीधा डिवाइड कर दो. दोनों देखो किस किस से डिवाइड हो रहा है. 5100, बाद में दिस इज 6788.1. और देखो किससे डिवाइड होगा? 1 2 3 17 into 3. Let's try dividing this by 17. 17 into 5. 17 5 नहीं 85 हो जाएगा. 17 into 4 plus 2 नहीं, इसको 17 से डिवाइड करना पड़ेगा. What will be the value? Let's see. Six seven eight eight one point. Sorry. अरे यार, 67881 divided by 17. 3993. Yes, 3993. तो इसको 3000 कर देते हैं, इसको 3993 कर देते हैं. Tell me now guys what? Now it's very simple. ये कितना हो गया? 1000. 1000 is to 1331. एंड ये क्या है? What is this? प्रिंसिपल इज टू अमाउंट. कितने साल का? 3 साल का. सो 3 साल मतलब अब क्या करेंगे? What will we do? Exactly, cube root. Cube root is 10:11. So what is the rate of interest? The rate of interest is 10%.
What would be the simple interest accrued on the same amount in the same rate in the same period? 3 साल में इसका 10%, 10%, 10% गिन लो. So that is 30% of 25,500. 25,500 into 30 by 100. That is 75, 15, 7650. That is your answer. समझा सबको? Did everybody understand? Okay, great. The simple interest accrued on an amount of 84,000 at the end of 3 years is 30,240. तो मतलब 1 साल का कितना हो गया? 108 नहीं 10080. दैट इज 1 ईयर का इंटरेस्ट. तो ये देख लो कितना परसेंटेज है इसका, उस हिसाब से तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा पर ईयर का. तो उस हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कर दो कितना आएगा. आई होप यू गाइस विल डू दिस बाय योर ओन. कर लोगे ना ये खुद से तो मैं आगे बढ़ू. चलो. Sudhanshu invested 15,000 in interest of 10% for 1 year. If the interest is compounded every 6 months, what amount will Sudhanshu get at the end of the year? So मैं क्या करूंगा? Will I take 10% per year है ना? तो मैं इसका 10% का क्या कर दूंगा क्योंकि compounded every 6 months है. So what will I do? Exactly, मैं 5% 2 बार लूंगा. Exact. So 5% will be how much? 5 plus 5 plus 5 square by 100. That is 10.25. So इसमें 10.25% ऐड कर दो. That's it. That will be the value. समझा सबको? आंसर खुद से ढूंढ लो. Great. Miss Sandhya deposits an amount of 31,400 to obtain a simple interest at the rate of 12% per annum for 8 years. What is the total amount Miss Sandhya will get at the end of 8 years? Do I need to solve this? चलो खुद से कर लो. 28 sum, very classic, very great sum. A sum becomes 7 by 3 times itself in a period of 10 years. So 7 by 3 times itself मतलब कितना हो गया? It is how much percentage? It is 233.33%. ये समझा 233.33% कैसा है? Did everybody understand this? Great. चलो ये उसका ओवरऑल अमाउंट है. बिकम्स दिस मच मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिला? हाउ मच इज द इंटरेस्ट दैट ही गेट्स? 10 साल का इंटरेस्ट कितना अमाउंट है इसमें से? एग्जैक्टली 133.33 इज द इंटरेस्ट इनकम. उसका इंटरेस्ट इनकम इतना है. 10 साल का इंटरेस्ट इनकम इतना है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? ये सिंपल इंटरेस्ट है. सो व्हाट इज द इनकम ऑफ 1 ईयर? 13.33. Exact. That's it. Was that difficult, guys? Chalo. A sum of 45,000 is divided into 2 equal parts and invested at 6% and 11% on simple interest. The interest gained in 2 years is 8,100. What is the sum invested at 6%? Guys, tell me how will you do this? I want you guys to answer. Tell me how will you do this? Remember, फॉर्मूला कोई यूज नहीं करना है. आज का पूरा चैप्टर में हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया. Tell me how will you do this? जल्दी जल्दी गाइस बोलो. Somebody please think.
You will be really feeling like अरे यार इतना छोटा सा मिस कर दिया. Exactly Dhaval, perfect. You have to use ratios. ये क्या होगा पता है guys? We will solve it by the number line system. हमें रेशियो नहीं पता है, पर हमें पता है कि 45,000 ओवरऑल अमाउंट है. अगर उसने 6% पे पूरा इन्वेस्ट कर दिया तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? उसको एक्चुअल इंटरेस्ट कितना मिला? ये 2 साल का इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो उसको 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिला? 4050, राइट? तो इफ यू इन्वेस्ट एवरीथिंग ऑन 6%, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए पर ईयर? 45,000 का 6% इज हाउ मच? 2700. अगर वो सब कुछ 11% पे इन्वेस्ट करेगा तो उसको कितना मिलेगा पर ईयर? 450 into 11, 4,500, 4950. एंड अपना कितना है? 4050. डिफरेंस देखो, हाउ मच इज द डिफरेंस? 900 रुपया. एंड इधर से कितना है? 1350. So what is the ratio? Ratio of the difference is exactly 3/2. So the amounts are invested in the ratio 2:3. तो 45,000 के 5 टुकड़े कर दो. 45,000 के 5 टुकड़े, 2 टुकड़े इधर गए एंड 3 टुकड़े इधर गए. The sum invested at 6% is 2 टुकड़े. That is how much? 18,000 exactly. समझा सबको guys? Tell me. I'm pretty sure this sum looks scary, but is it difficult to solve at all? Wait. सबको समझा ना गाइस? Did everybody understand? ये क्या किया मैंने? राज अब हो जाएगा ना सॉल्व? बुक में, हाँ बुक में सॉल्व नहीं हुआ था, अब हो जाएगा इजीली सॉल्व. ये वाली ट्रिक तुम्हें कहीं पे नहीं मिलेगी. आई एम 100% श्योर. देयर आर वेरी डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग दिस. जो बुक में देते हो वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाता है. चलो. A sum of money is divided in the ratio 3:5 and the smaller part is invested at 15%. The total interest rate is 12.5. What is the interest for the second part? Is this difficult or is this easy? Tell me. Guys, is this difficult or easy? 3:5. So the ratio should be 5:3. Right? The smaller part is invested at 15%. And ये कितना है? 12.5. डिफरेंस कितना है? 2.5. So 0.5 each. तो इधर कितना ले लेंगे? 0.75. 12 से 0.75 पीछे खींच लो. That is how much? 11.75. समझा सबको? Did everybody understand this? हेमंत नहीं समझा? नो वेद, गलत किया. दिस इज एवरेजेस वाला मेथड गाइस, वही मेथड है. देखो दोनों अमाउंट्स है. अमाउंट्स को कौन से रेशियो में डिवाइड किया है उन्होंने? द अमाउंट्स आर डिवाइडेड इन द रेशियो 3:5. बाद में मुझे बोला है द छोटा वाला पार्ट is invested at 15% and my overall return is 12.5%. If the amounts are divided in 3:5 ratio, so my interest will be in what ratio? Interest का difference कितने ratio में हो जाएगा? 5:3. उल्टा हो जाता है ना हमेशा, right? तो देख लो यहां पे कितना डिफरेंस है? 2.5 का डिफरेंस है. 2.5 इस 5 टुकड़े, तो हर एक टुकड़ा कितना हो गया? अच्छा सॉरी 0.5. हाँ 0.5 इज ईच एंड एवरी पीस. तो यहां पे 3 टुकड़े हैं.
1 2 0.5 0.5 and 0.5, so that is 1.5%. पीछे खींच लो, so this is invested at 11%. समझा सबको? अब समझा? वेद तुझे समझ गया था रे, बाकी लोगों को? ग्रेट. A sum amounts to 49,470 and 56,620 after 11 and 18 years at simple interest. What is the amount after the fourth year? अरे बहुत सिंपल है एक्चुअली गाइस. 11 साल के बाद इतना अमाउंट है, 18 साल के बाद इतना अमाउंट है, तो मुझे 7 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा. व्हाट इज 7 इयर्स का इंटरेस्ट? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 620 150 7150. 7150 इज 7 इयर्स का इंटरेस्ट. 7 इयर्स. तो मुझे 4 साल के एंड में अमाउंट चाहिए ना, तो मैं इसमें से निकाल दूंगा. आई विल सब्ट्रैक्ट 7150 फ्रॉम दिस, सो दैट इज 42320. दैट इज द आंसर. समझा सबको? Did everybody understand this, guys? धवल ये अब चिंदी लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था. Everybody fine with whatever you've done up till now? अब तक का सब कुछ समझा गाइस सबको? Does anyone have any doubt in any sum? Okay, great. So now guys, let's move on to that one sum where there was some problem. The बड़ा वाला sum, जो 2 बेटों में डिवाइड किया पैसा वाला. Will you guys just wait for 5 minutes? मैं अपनी बुक में देख के मैंने कैसे सॉल्व किया था. Please wait for 5 minutes, guys.